Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me your science teacher. So students, in this video we would like to start chapter 8 body movements. Okay students, so let's begin our chapter 8 science. It's absolutely still. Observe the movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Or when you turn and look at your friend, different parts of your body move while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. You walk, run, skip, jump, move from place to place. So students, in this paragraph they wanted to tell us that कि हम लोग आइज़ अपनी ब्लिंक करती है तो वो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का, और हम लोग एक जगह से कोई दूसरी जगह भी जाते हैं तो वो भी एक मूवमेंट होता है बॉडी पार्ट्स का. हम लोग बातें करते हैं तो आवर लिप्स आर मूविंग, our voice are coming behind that. If we run, so we have to run it out. Jump, so we should have to jump it out. So if we wanted to go from one place to another, we should have to use our body parts, right? So now, like our human beings as well as the animals also, they also walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. There are a few more ways students that animals can move from one place to another. ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स है जो एनिमल्स हमसे ज़्यादा मूव करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, so in 8.1 human body and its movements, so we will talk this one right now. So you know that कि if we will move our body, we are having a varieties of movements. हमारे पास बहुत सारे varieties हैं movements के, animals की तरह भी. तो see, imagine that let us try some of the many movements our body is capable of. ठीक है, bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. How can you move your arm? अब आपको बॉलिंग करनी है. आप क्रिकेट खेलते होंगे बच्चों, तो इसमें आप बॉलिंग करनी है और विकेट को आपको हिट करना है, तो यू शुड हैव टू मूव योर आर्म्स. आप अपने हाथों के थ्रू, सर्कुलर मूवमेंट के थ्रू, लेग्स आपके रोटेट होंगे, हिप्स आपके मूव करेंगे, एंड देन यू कैन थ्रो द बॉल right in front of the wicket. So these are having our body parts movement, right students? So with the help of these moves we can hit the ball and our body definitely moves. So see, firstly we will see activity 1. Place a scale lengthwise on your arm. You can see in this picture that below is in the center. ये देखो, आप इस तरह से आप अपने हाथों को बांध दोगे तो obviously students हमारा हाथ रिमूव नहीं होगा. Never, it is unpractically happened कि हमारे इस तरह से हम लोग इसको बांध देंगे तो वो मूवेबल होगा. No, our hand will not be swing, not at all, because it is attached by that blade or by that piece of wood, you can say. So with the help of that our hands are straight, so we can't swing our hand, right? So this one is activity 1. Now see, did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder and neck? These places are called joints. सो आप लोग ने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स कि ऐसे तो हमारी बॉडी पार्ट एकदम स्ट्रेट है, राइट, जैसे कि हमारा हाथ, बट हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को जो स्ट्रेट दिखता है और जो जॉइंट है उसमें हम लोग बेंड कर सकते हैं. जैसे कि हम एल्बोज़ को बेंड कर सकते हैं, शोल्डर्स को बेंड कर सकते हैं, नेक को बेंड कर सकते हैं. सो इस प्लेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं, जॉइंट्स. नाउ प्रेस योर फिंगर्स. आप अपने फिंगर्स को प्रेस करो और टॉप ऑफ योर हेड, अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक,
neck, nose, ear, back of the shoulder, hands, legs, including fingers and toes also. You should have to press. तो you will feel one type of sensitivity also. आप उस चीज़ को प्रेस करोगे तो आपको वो चीज़ सेंसिबल होगा, आप उसको सेंस कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे इसको प्रेस कर रहे हैं, राइट. सो जो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे बॉडी के उसको बोन्स बोलते हैं, राइट. जो हार्ड होते हैं जिसमें हम लोग को कुछ लग गया तो हमें बहुत ज़्यादा दुख लगेगा, बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है. सी हमारे बोन्स बेंड नहीं कर सकते, आवर बोन्स कैन नॉट बी बेंड. सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो. तो बोन्स हमारे बेंड नहीं हो सकते तो एल्बोज कैसे बेंड हो रहे हैं, राइट. तो इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन, ये एक वन लॉन्ग बोन नहीं है अपर आर्म से लेकर विस्ट तक. मतलब एक लंबा बोन नहीं है हमारे अपर आर्म से लेकर विस्ट तक, वो एक टुकड़ों में बना हुआ है. So there are many bones in our body. Each part in our body there are many bones. बहुत सारे bones हैं. So with the help of those bones we can move our body very easily, students. Now see the activity 2. Ball and socket joints. Roll a strip of paper into a cylinder, make a small hole in an old rubber or plastic ball and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. Does the ball rotate freely inside the bowl? See, you can see in this picture. अब देखो एक पेपर सिलेंडर हमने बनाया और उसके ऊपर बॉल को जॉइंट किया है और उसके ऊपर बाउल रखा है, कटोरी जो होता है ना वो. तो ऑब्वियसली वो मूवेबल नहीं होगा. कटोरी का प्रेशर के वजह से दैट पेपर सिलेंडर विल नॉट एट ऑल ओपनली रोटेट, वो रोटेट नहीं हो सकता. तो एज वेल एज सेम हमारे जो आर्म्स है वो भी हमारे बॉल्स की तरह है और वो एंड में रोटेट उसी की हेल्प के थ्रू ही हो सकता है. सो जो द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर. जो बाउल है वो हमारे पार्ट ऑफ द शोल्डर का एक पार्ट है, आप समझ लो, और जो आर्म है वो उसके साथ जॉइन किया हुआ है. तो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन. तो जो राउंड है एंड, जो बोन के जो लास्ट का जो पार्ट है वो राउंडेड है और वो फिट किया गया है कैविटी के साथ. जो हॉलो स्पेस होते हैं, जो स्पेस होते हैं ना, उसमें उसको जॉइन कर दिया है दूसरे बोन के साथ. इसलिए हम लोग कोई भी मूवमेंट्स में, कोई भी डायरेक्शंस में अपने हाथ को मूवेबल कर सकते हैं. सी यू कैन सी दिस वन पिक्चर, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सी ये हिप बोन है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ अ हिप बोन. लेट मी दिस पार्ट इज़ अ हिप बोन, स्टूडेंट्स, राइट. और ये जो आपको नहीं दिख रहा सिल्वर, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसी के थ्रू हमारे जो पार्ट्स है वो जॉइंट किए होते हैं. और ये जो पार्ट है वो थाई बोन है, ये हमारे थाई बोन है. हमारे बॉडीज़ इतनी अच्छी तरह से बनाई गई है, इट्स बीन लाइक टू ईजी टू हैंडल एनीथिंग, बट इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट easy to make that one. Now we will talk about pivotal joint. The joint where our neck joins the head is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. Try these movements. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle in? सो स्टूडेंट्स, जो पिवोटल जॉइंट है वो हमारे नेक और हेड जो होता है ना, नेक और हेड के थ्रू जॉइंट किया हुआ है. तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ पिवोटल जॉइंट. सो यू शुड हैव टू राइट द जॉइंट वेयर आवर नेक्स्ट जॉइंट्स टू द हेड इज़ अ पिवोटल जॉइंट. और वो हमें अलाउ करता है हेड को बेंड करने के लिए. हम लोग आगे पीछे करते हैं ना, लेफ़्ट राइट, वो सब हम लोग मूव करते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. So with the help of these pivotal joint we can turn the head to our right, left, forward, backward, anywhere. Okay, so try these movements also. So these we can rotate our complete circle. See this one, this is a pivotal
जॉइंट स्टूडेंट्स। दिख रहा है आपको, ये रहा पिवोटल जॉइंट। इसके थ्रू ही हम लोग अपने हेड को और अपने नेक को मूव कर सकते हैं। सो पिवोटल जॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ लेट्स सी हिंज जॉइंट्स। अब हिंज जॉइंट्स क्या होता है, जो ओपन और क्लोज डोर होते हैं, जो फ्यू टाइम्स, मतलब हम लोग को कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल डोर्स है तो डोर्स को हम लोग बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, राइट। तो वो जो हिजेस होते हैं तो वो हिजेस जॉइंट्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। बैक साइड, फॉरवर्ड साइड, वो सब चीज़ें मूव करने के लिए। तो सी अब नाउ एक्टिविटी 3, let us look at the kind of movement allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in figure 8.5. Attach a small pencil. देखो इसके साथ आपको एक, ये जो आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स अलाउड बाय हिंज लाइक जॉइंट, ये एक आपको सिलेंडर कार्डबोर्ड लिया गया है और उसमें एक होल करके 2 पेंसिल्स लगा दी गई है। नाउ इज इट द पार्ट दैट दिस पेंसिल्स कैन बी मूव? येस स्टूडेंट्स, ये पेंसिल्स अंदर में मूव हो सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग अ स्पेस ओवर देयर। तो ये सर्कुलर मोशन में भी जा सकता है, स्ट्रेट एंड अपवर्ड, बैक एंड अपवर्ड भी जा सकता है। सो ये एक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स है कि किस तरह से हिंज जो हमारे जॉइंट्स को, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसको मूव कर सकता है कोई भी डायरेक्शन में स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फिक्स्ड जॉइंट्स। सो बहुत सारे जॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे बोन्स है हेड के थ्रू, मतलब सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स, मतलब कोई बोन्स के बीच में ऐसे कोई जॉइंट्स है जो हमारे हेड में है, वो बहुत डिफरेंट है दूसरे बोन्स के थ्रू। तो जो बोन्स मूव नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू मूव, दोज टाइप ऑफ जॉइंट्स आर नोन एज फिक्स्ड जॉइंट्स। ऑब्वियसली जो मूव नहीं कर सकते उसको हम लोग फिक्स्ड जॉइंट्स ही बोलेंगे, राइट। सो व्हेन कैन यू ओपन योर माउथ वाइड? हम लोग माउथ को ज़्यादा एकदम ऐसे राक्षस जैसा तो नहीं कर सकते ना, सो दैट इज़ अ जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट। सो देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जो, हमारे एक वहाँ पे जॉइंट है जो अपर जो और द रेस्ट ऑफ द हेड, पूरे हेड में, तो उसको हम लोग फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स, और वो बहुत डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट शेप्स के भी है। तो ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में जॉइंट्स के थ्रू ही हमारा बॉडी बना गया है। सो दैट इज़ वेरी मिरेकल, यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ दीज जॉइंट्स आवर बॉडी हैव मेक अ परफेक्ट शेप of our body students. So now see, the human skeleton is composed of around 305 bones. मतलब हमारे ह्यूमन स्केलेटन में 305 बोन्स है जब हम लोग पैदा होते हैं। The number of bones in the skeleton changes with age. जो नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो पैदा होते हैं, उसके बाद चेंजेस होते रहते हैं हमारे एज के थ्रू। फिर इट डिक्रीजेज, वो कम हो जाते हैं और वो 206 बोन्स में रह जाते हैं जब एडल्ट हो जाते हैं हम लोग। सो आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर, थोड़े बहुत सम कोई बोन्स होते हैं वो चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं। सो जब हम लोग पैदा होते हैं तब 305 होता है, एंड जब हम लोग थोड़े एडल्ट हो जाते हैं तब वी हैव गॉट द 206 बोन्स। सो सी दिस इज स्केलेटन, द ह्यूमन स्केलेटन, ये ह्यूमन स्केलेटन है स्टूडेंट्स। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन। आप लोग ने सबने सुना होगा ये। सो हाउ दिस शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मतलब ह्यूमन स्केलेटन का ऐसा कैसा शेप है, तो हम लोग को एक चीज़ बताई गई है कि वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप। कोई भी शेप का आइडिया हमारा हो सकता है इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे पार्ट्स के थ्रू। सो वन वे वी कुड नो दिस शेप, हम लोग एक ही वे के थ्रू इस शेप को पता कर सकते हैं, और वो है एक्स-रे। एक्स-रे आपको पता है ना, पूरी बॉडी के बारे में, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर हमें बता देता है। सो एक्स-रे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी,
तो अब जैसे कि आप लोग ने देखा हो स्टूडेंट्स कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो या किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजरी हुई होती है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है कि आप एक्सरे करवा के लाओ। तो क्या होता है कि एक्सरे करवा के आते हैं वो पार्ट और वो जहाँ पे चोट लगी है, तो हमें क्लियरली डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि कहाँ पे लगी है, एंड देन ओनली वी कैन डू सम मेडिसिन्स और वन टाइप ऑफ practically doctor's method to clearly find out the problem, exactly where it is the problem and why this was happening. So that's why firstly we have to do the x-ray. See, you can see the picture over here. देखो ये इस तरह से एक्सरे हुआ होगा, सबके घर में एक ना एक बार तो एक्सरे हुआ ही होगा, इट इज़ डेफिनेटली. सो दैट्स वाई दिस वन इज़ एक्सरे. और ये एक्सरे किस चीज़ का है? एंकल और नी जॉइंट का है, एंकल और नी जॉइंट का. अब देखो, अब आप अपने फिंगर्स को बेंड कर सकते हो, राइट? फिंगर्स, बोन्स ऑफ द हैंड. तो हम लोग फिंगर्स को अपने बेंड कर सकते हैं. तो आर दे आर एवरी जॉइंट? वो क्या जॉइंट है, परमानेंटली जॉइंट है? No, middle finger have feel the back of your palm. It seems that they are having many bones, but is your wrist flexible? So it is made up of several small bones. तो जो हमारा हाथ होता है वो बहुत छोटे छोटे बोन्स से बने होते हैं, और वो छोटे छोटे बोन्स को क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स. ओके, सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो बोन्स ऑफ द हैंड. Now we will see the activity 4. Take a deep breath and hold it for a little while. Feel your chest bones and the backbone by gently press the middle of the chest and back at the same time. Count as many ribs. So students see, ये जो आप देख रहे हो ये रिब केज है हमारे जो बॉडी, जो पेट का जो स्ट्रक्चर है, गले के नीचे का जो स्ट्रक्चर्स पूरा होता है वो होता है रिब केज. सो अब आप देखो, वी सी दैट द रिब्स आर करेंटली बेंट. मतलब जो हम लोग देख के बोल सकते हैं कि जो रिब्स है वो करेंटली बेंट है, तो उसको चेस्ट बोन की तरह जॉइन किया गया है बैकबोन के साथ. मतलब हमारे जो चेस्ट बोन है उसके थ्रू जॉइंट किया गया है बैकबोन के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं रिब केज. सो ऐसे टोटल 12 रिब केज होते ईच साइड ऑफ चेस्ट. दोनों साइड में 12 रिब्स होते हैं, और सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी में जो इस केज को प्रोटेक्ट करते हैं. अब देखो, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि आपके टोज़ को छुए, पकड़े, विदाउट बेंडिंग देयर नीज़, अपने नीज़ को बेंड ना करके फिर छुए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. व्हाट यू फील इज़ द बैकबोन. अब आप जैसे बेंड होगे ना तो आपका जो पीठ है वो बेंड होगा, तो जो पीठ बेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन. और ये बना हुआ होता है छोटे छोटे बोन्स में, और इसमें टोटल 33 वर्टेब्रा होता है. जो छोटे छोटे बोन्स से बना होता है उसको वर्टेब्रा बोलते हैं, और टोटल 33 वर्टेब्रा होते हैं जो रिब्स को जॉइन करता है बोन्स के थ्रू. यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, दैट्स ग्रेट, राइट? ये होता है. तो इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, तो एक बैकबोन जो है वो ही एक है कि जो एक लॉन्ग बोन से बना हुआ है स्टूडेंट्स. और जो प्रोमोनेंट होते जो शोल्डर्स होते हैं, सी ये रहा, ये हमारे शोल्डर बोन्स है, आप देख सकते हो, दिस वन, दीज आर द शोल्डर बोन्स स्टूडेंट्स. तो जो ये शोल्डर बोन्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन्स बोलते हैं. दीज आर द शोल्डर बोन्स. सो दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ पेल्विक बोन्स. ये जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है? पेल्विक बोन्स से बना होता है. दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी को स्टोमक के थ्रू अटैच, बिलो द स्टोमक के थ्रू जो अटैच करते हैं वो पार्ट हमें बैठने की जगह देते हैं, हिप्स, यू कैन से दैट. सो दिस वन इज़ अ पेल्विक बोन. ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ अ पेल्विक बोन्स, इसी के थ्रू हम लोग बैठ सकते हैं.
सो ये जो स्कल है ये बना होता है, समझ गए, इसको पेल्विक स्टोन बोलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्कल के रिलेटेड। ये जो आप देख रहे हैं ना, खोपड़ी जिसको बोलते हैं हमारे हिंदी लैंग्वेज में स्कल, अब वो हेड पोर्शन। तो ये जो स्कल है वो बहुत सारे बोन्स को अटैच जॉइंट करके बनाया जाता है, और उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्ट्स इट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज़ ब्रेन। तो जो हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट है वो है ब्रेन, वही प्रोटेक्ट करता है इससे। तो हम लोग ने अभी बहुत सारे डिस्कस की कि स्केलेटन्स, कितने सारे स्केलेटन्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो अप टू हियर आई वांटेड टू मेक इट आउट। द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट the next part of our body parts, students. I hope you are understanding it and you are revising all your subjects also, because your exams are coming by. So now I will see you in the next video. Till there, stay home, stay safe. With the help of this line I would like to pack up. So bye bye.